Good morning, dear students. This is Sudhir Shukla, and we will discuss for the satellite communication subject. So let's start our discussion. Dear students, you all know that the technology is increasing day by day. Along with it, when there was change in the telecommunication field and automobile fields, they made rapid changes in the standardization of the people. उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो गया जैसे जैसे ऑटोमोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन में चेंजेस हुए. फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल में पहले के दशक में हम जानते थे कि जब हमें ट्रैवल करना होता था तो नॉर्मली लोग पैदल चलते थे और कई दिन लग जाते थे पहुंचने में, ज़्यादा दूरी को तय करने में. फिर धीरे धीरे ब्लैक कार्ड्स आए, फिर बाईसाइकिल आई, फिर मोटर बाइक्स आई, फिर कार आए, फिर ट्रेन्स आए, फिर प्लेन्स आए, एडवांस हुए स्टैंडर्ड्स. ये ऑटोमोबाइल के फील्ड में था. एंड सिमिलरली टेलीकम्युनिकेशन में देखें, पहले हम लेटर पेजेस पे लेटर लिख के भेजते थे, महीना 2 महीना 4 महीना लग जाता था पहुंचने में, फिर वहां से रिस्पॉन्स आता था. फिर धीरे धीरे और वे ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ा, डिवाइसेस आए, फिर उनकी स्पीड बढ़ी और सेकेंड्स मिली सेकेंड्स में हम मैसेज कहीं भी भेजते हैं वो वहां पर पहुंच जाता है. तो इन टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट के साथ लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता रहा और नीड ये भी बढ़ती रही. सो व्हाई आई एम टेलिंग दीज ऑल थिंग्स, बिकॉज मेरा प्राइम फोकस इज ऑन द नीड. रिक्वायरमेंट्स बढ़ी तो टेक्नोलॉजीज ट्रेंडिंग में आए, उनकी एक्सिस्टेंस है. तो वी हैव टू कम ऑन कि क्यों नीड पड़ी. दिस विल बी क्लियर बाय दिस एग्जांपल. I have written here that suppose if we have to calculate how many towers required to cover Indian landmass, we are just calculating by a simple assumption. जहां पे हमें नंबर ऑफ टावर्स पता करना है, ओवरऑल लैंडमास की अगर हम बात करें तो कितने टावर्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है. So I am assuming that Indian landmass to be of 4 into 10 to the power 6 kilometers square. This is I am considering the area for the total landmass. So if I go for the mobile towers, the mobile towers cover a radius of, let's suppose, 1 kilometer square. That mobile tower which coverage is about 1 kilometer square. ये उसका दायरा है, एक टावर. और इंडियन लैंडमास इज समहाउ 4 into 10 to the power 6 किलोमीटर स्क्वायर. तो मोबाइल टावर का ये रेडियस है 1 किलोमीटर स्क्वायर. सो लेट्स सपोज आवर टावर्स आर इंटरकनेक्टेड टू प्रोवाइड ऑल इंडियन कवरेज. पूरे टावर्स जितने भी नंबर ऑफ टावर्स, क्योंकि वही नंबर ऑफ टावर्स हमें कैलकुलेट करना है. डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि क्यों नीड पड़ी सैटेलाइट्स की. This will be clear by such example. जहाँ हमने थोड़ा सा assumption लिया. फिर now we have to calculate number of mobile towers required to fully cover India. We are talking about this India. So mobile tower coverage with 1 kilometer radius, we all know, अगर हम उसको एक सर्किल माने तो उसके सर्कमफ्रेंस से हम लोकेट कर पाएंगे, बता पाएंगे कि ये इसका कवरेज है. तो अगर हमें सर्कमफ्रेंस बताना है, उसका एरिया बताना है, तो उसके लिए हमें क्या लेना होगा, कंसीडर करना होगा पाई आर स्क्वायर. एंड आर इज कंसीडर्ड टू बी 1 किलोमीटर. Got it? So when I have put here the value of r to be 1,
I have such a value 3.14 kilometer square. This is what mobile tower coverage with 1 kilometer radius. So I have 3.14 kilometer square value. Yes, friends. So if I have to calculate the number of towers required to cover total Indian land mass, an Indian land mass is considered to be 4 into 10 power 6 kilometer square, and the coverage area for a single tower is to be taken as 3.14 kilometer square. This 3.14 is nothing but the value of pi. That is what 22 by 7. That I have written in the decimal form or integer form, like 3.14. So if this means if I have to calculate the number of towers required to cover total Indian land mass, that is to be calculated by total land mass divided by such a value. Means 4 into 10 to the power 6 divided by 3.14. And when I have calculated, I have a value 1.27 million. Dear students, this is the value. What it tells? It tells this is the number of towers required to cover total Indian land mass, which is to be 4 into 10 to the power 6 kilometers square. तो इतने नंबर ऑफ टावर्स की जरूरत पड़ेगी. दिस इज नॉट अ स्मॉल वैल्यू. 1.27 मिलियन नंबर ऑफ टावर्स, नॉट अ सच इजी टास्क. क्योंकि सिर्फ टावर को लगा देना ही नहीं है, उनका केयर भी है जरूरी. केयर मीन्स प्रॉपर मैनेजमेंट. जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी सर्किट्स हैं, सबको मैनेज करना. प्रॉपरली दे आर फंक्शनिंग और नॉट. Time to time check करना. That is not an easy task because the number of towers is 1.27 million. So dear students, this value tells that why we are in need of space communication. ये हम communication का एक example लिया था हमने कि अगर we have to establish a communication around the total India, so we are in need of this much number of towers. So this tells the need of space communication. Large coverage area अगर आपको चाहिए, and overall you have to establish a proper communication. For that we are in need of space communication, and that space communication is only possible using the satellite. That tells the importance of satellite. And what is satellite? I have told in my previous video. That is a body which is going to revolve around a larger body in a well-defined path or fixed path. So यहाँ से हमें पता लगता है कि satellite की importance क्या है. So we will start our discussion for the satellite communication. Satellite communication. Dear students, let me write a best definition for this satellite communication. After it all, we will start our discussion. Communication, satellite is an artificial satellite that relays and amplifies radio telecommunication signals via transponder. Dear students,
प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज सैटेलाइट. नाउ वी हैव टू गो फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन. So this is the best definition. What it does, a communication satellite is an artificial satellite that relays and amplifies radio communication signal via a transponder. Yes, friends. Communication satellite is an artificial satellite, as I have told you. कि जो types of satellite होते हैं वो दो होते हैं, एक natural satellite और एक artificial satellite. तो natural satellite से we are not going to deal. हमारा सब्जेक्ट इज व्हाट अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. इसके बारे में हमने पढ़ना है. दैट इज मैन मेड सैटेलाइट, जिसको हम ह्यूमन बीइंग्स लॉन्च करते हैं स्पेस में फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड. एंड व्हाट इज आई हैव टोल्ड यू द नीड ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन. इस एग्जांपल से मैंने वही आपको एक्सप्लेन करना चाहा कि जो नीड है स्पेस कम्युनिकेशन की, लार्ज कवरेज एरिया कवर करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो सैटेलाइट किस प्रकार से. तो ये सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं दैट इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट रिलेज एंड एम्प्लीफाइज. आई हैव टोल्ड यू व्हाइल टेलिंग यू अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट, उसका काम है रिफ्लेक्शन का. But what artificial satellites do basically, it relays and amplifies a radio signal. That means satellite जिसका प्रॉपर जनरल काम है रिफ्लेक्शन का, वो जनरली सिग्नल्स को रिसीव करता है. And while receiving, it processes that signal and retransmit it back with a proper amplification. जो सिग्नल है that should be radio telecommunication signal. That means that should be radio signal. That means that signal which we are using for the communication, which we are using for sharing the information, that signal's frequency should be in the radio frequency range. And proper communication, dear students, and proper communication is being done in the microwave frequency range. First of all, I would like to tell you the range for radio frequency, that is about 20 kilohertz, so 300 gigahertz. This is the radio frequency signal, RF range. And when we are talking about microwave frequency range, that range is between 30 megahertz and 300 gigahertz. As the definition says, amplifies radio telecommunication signal. That means radio frequency signal, RF frequency signal, जिसकी रेंज ये रेंज होती है 20 किलोहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज. और जनरली जो कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि सैटेलाइट्स का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट जनरली विच इज प्रीफरेबल रेंज और बैंडविड्थ फॉर द कमर्शियल कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट इज दिस वन, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज 30 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज. दिस रेंज, इट्स माय रिक्वेस्ट to all of you, ये रेंज आप जरूर याद रखें if you are a electronics and communication engineer. RF frequency की रेंज की बात हुई या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, because the generally devices which are using for the communication is microwave devices, and all those microwave devices are named microwave because they are operated in the microwave frequency range. ज्यादातर तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, और रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में ही ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी लाई करता है. सही 20 GHz, 300 GHz, 28 GHz, 300 GHz. तो जनरली जो रिसेप्शन का काम है और फिर उसको प्रोसेस करने के बाद ट्रांसमिशन का काम है, जो सैटेलाइट के लिए यूज हो रहा है रेडियो सिग्नल, वो उसके करस्पॉन्डिंग ये उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हमने बोला कि दिस इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट
that relays and amplifies radio telecommunication signal via transponder. Dear students, I have told you कि जनरली सैटेलाइट सिग्नल को रिसीव करता है और एम्पलीफाई करके रीट्रांसमिट करता है। इस वजह से जो ये करता है दैट इज व्हाट कॉल्ड ट्रांसपॉन्डर, वायर ट्रांसपॉन्डर। और ट्रांसपॉन्डर को हम कहते हैं दिस इज द हार्ट ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट का अगर हार्ट है दैट इज व्हाट ट्रांसपॉन्डर। What is transponder? Transponder is a device that generally receives the signal and transmits the signal. ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा डिवाइस है जो सिग्नल का रिसेप्शन भी करता है और फिर उसको ट्रांसमिट भी करता है। That's why it is called heart of the satellite. Yes, friends, हमें क्या जरूरत पड़ी एम्प्लीफिकेशन की? When we are going for the long distance communication. Yes, friends, when we are going for the long distance communication, two things should be done corresponding to the signal which we are using for the long distance communication. That signal should be modulated and that signal should be amplified. Modulation करना है क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है तो हमें उस सिग्नल को एम्पलीफाई भी करना होगा, क्योंकि एज डिस्टेंस इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट सिग्नल गोस डिक्रीजेस। स्ट्रेंथ वीक होती है। हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, नो डाउट सिग्नल डिस्टेंस के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होने लगेगी, वीक होने लगेगी। और अगर सिग्नल वीक रिसीव हो रहा है दैट मींस वी आर गोइंग टू लूज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, फॉर दैट देयर इज अ नीड ऑफ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। दैट्स व्हाई वी डू ऑल दिस कनेक्टिविटी। एम्प्लीफिकेशन हमें करना होता है सिग्नल्स, एंड दैट व्हेन वी आर गोइंग टू डू वी गो फॉर द प्रॉपर कम्युनिकेशन। We can enjoy the services which will be provided by the satellite. जब ये conditions आपको long distance cover करना, no doubt you can use the satellite, but the signals frequency should be in this range. इस range से बाहर, इस range से कम, it should not be beyond that range, it should not be less than that range. इसी रेंज में हो तभी सिग्नल का प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इट रिसेप्शन होता है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एंड वी डियर स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दिस कांसेप्ट वी कैन आल्सो से कि दिस सैटेलाइट वर्क एज ए चैनल। चैनल का काम करती है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। ट्रांसमीटर से सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, रिसीवर पे सिग्नल को पहुंचना है, तो ये सैटेलाइट एक माध्यम बनेगा। इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करना है, लेट्स सपोज आई एम इन इंडिया और मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन कन्वे करना है, कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन उसको कन्वे करना है एनी ऑफ द पीपल हु इज इन रशिया। तो इसके लिए जो चैनल बनेगा दैट शुड बी अ सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू ही ये कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो वी कैन से कि दिस सैटेलाइट क्रिएट्स अ चैनल बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। Dear students, these communication satellites are used for television, telephone, radio, internet, military applications, a lot of things are there. These are the applications we are discussing while taking the communication. लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, नेविगेशन। हम जाएंगे टॉपिक जब एप्लीकेशन इसका कवर करेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, देयर वी विल सी। सो दिस इज व्हाट अबाउट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया कि व्हाट इज सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, और फिर जो हमारा सब्जेक्ट था सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दैट इज व्हाट इट इज। तो ये प्रॉब्लम हमें ना फेस करना पड़े,
कॉस्ट की इफेक्टिवनेस हो, इसलिए वी स्विच फॉर द सैटेलाइट कम्युनिकेशन. So dear students, this is all about the satellite communication. It was just an overview of the satellite communication. And at the end of this video lecture, I would like to tell you, if there was a survey, I hope the date was 1 August 2020. There are 87 number of satellites which have been launched in the space. 1 अगस्त 2020 को सर्वे हुआ था और उसमें कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था, और कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए लगभग 1364 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स यूज किए गए थे. कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली सैटेलाइट्स डिपेंड करता है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने लॉन्च किए जा चुके हैं. हर ईयर नियर अबाउट 90 to 100 ऑन एन एवरेज सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं कंट्रीज, और उनमें कमर्शियल कम्युनिकेशंस के लिए लगभग 1364 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च किया. डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट या नीड होती है उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशंस सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं. And one thing I want to make you sure that satellite is not only launched by the government organizations, private organizations भी हैं जो कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं. Likewise, the well-named private organization SpaceX, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं. इसरो, नासा, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो दोनों मिलके प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर टोटल कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुके हैं और आगे इनकी काउंटिंग कितनी होगी वी डोंट नो, वी हैवंट एनी आईडिया. सो दिस इज ऑल अबाउट the communication satellite. We will discuss our next topic in our next video lecture. Thank you so much for today's video lecture.